Good evening to all of you, respected principal sir and my colleague. Today, again, we have come for this in-house training. Already we have had three before. Thank you for sparing your time. In-house training. Now, our topic for now is the salient features of educational policy 2020, which Government of India adopted in the year 2020, and the resource person, Mr. Chandan Karmakar, is going to share his views, enrich our knowledge on this topic. So I would like to request Mr. Chandan Karmakar to please come and share his views with us. Good evening, everybody. My topics today is the salient features of National Education Policy 2020. Today we will discuss about these features. Okay, the features of National Education Policy. We all know about this from earlier. About three national policy was uh, done by Indian government. Two was during the Congress government, and third one is the during the period of BJP, means Bharatiya Janata Party. Now, features of National Education Policy 2000. Everybody know that to training the and quality of teachers for the schools and school education also, stress on the moral education also, then social development also. These are the features related to National Education Policy 2020. Equalization of educational opportunity also. These are the things we are discussing. Next, the evolution of education policy. Okay. Now, evolution of National Education Policy. First is University Education Commission 1948 to 1949. Then after independence, this commission was set up. Then second is Secondary Education Commission 1952 to 1953. Then Education Commission 1964 to 66 under the Dr. D.S. Kotari. From that period, three commission has conducted to revolutionize the education in India. Step by step, we are discussing. Now, first, then topic will be next. Now, structure for pedagogical. Okay, now I can say that two difference. That education policy 2000 and 2020 and 1968 and 1986 we are comparing. Okay, earlier 10 plus 2 plus 3 method is done. Now this year means 2021, something is changed, means academical structure is changed.
5 plus 3 plus 3 plus 4. So we have to understand these steps one by one. First is this new structure will be learned by foundational course. 2 years class 1 and 2 at the age of 6 to 8. This was given by National Education Policy. Then 3 years for Anganwadi, preschool, Bal Bhatika, 3 to 6. This is a foundational step. Then second step is preparatory step, class 3 to 5. Age is 8 to 11. This was given. Then the middle portion, class 6 to 8. Age is 11 to 14. New structure. Then lastly, the secondary structure, foundational structure is class 9 to 12 at the age of 14 to 18. In this between, this structure was mentioned. Then other things are, other features of this structure are no hard separation of streams. Student can choose his stream according to his or her interest or desire also. Then board exam. Earlier board exam was memorized and faith used to held once a year. Now this board exam system was little bit changed based on the core competencies with the students allowed to take the exam twice a year. Okay. Then award of degree also. Degree मतलब उनको जो degree diploma type का मिलने हैं. The completion of 3 to 4 years, a student can get a degree from the institute, recognized institute. Earlier it was given. Now the multiple exit option with the certificate after 1 year or 2 years diplomas given. Now then comes vocational education. Earlier government who has set up the education policy, that time there was no vocational education compulsory. Now from 2020, vocational education come to exist. From class 6 to internship, means up to class 12. This vocational education was given to from class 6 standard to class 12 standard. Then mark sheet scoring also. Last point is based on mark sheet obtaining in exam. Earlier the students are scoring and it was given by teachers and the school authority what student get from that first term, second terms. Okay. Now new patterns were developed in education policy 2020. 360-degree performance evaluation. Okay, round up means whole. There is two parties there, post-scholastic and scholastic. Earlier it was done, but after 5 to 3 years, somebody is changing. Something is changing as a CBSE, NCERT also day by day and year by year, they change their method in a teaching also. Then early child care education foundation learning. This is important part of our education also. Now this foundation, इसका बारे में हम लोग ज्यादातर बात करेंगे. ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, ये क्या इनको भारत सरकार का एजुकेशन पॉलिसी में बोला जा रहा है कि बचपन से ही उनको अच्छी तालीम दिया जाए, बढ़िया से उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए उनको मौका दिया जाए. तो उसमें क्या है, आंगनवाड़ी से ही स्टार्ट किया जा रहा है. पहले आंगनवाड़ी थी और इसको और भी शक्तिशाली बनाया जा रहा है. किस तरह से आंगनवाड़ी का जो सोर्स है, उसका मेथड है, उनको और भी डेवलप किया जा रहा है. स्ट्रेंथ, उनका ताकत बढ़ाया जा रहा है. जहां एक विलेज में 2 आंगनवाड़ी का प्रोसेस था, सेंटर था, उसमें और 4-5 आंगनवाड़ी का भी सेंटर खोला जा रहा है. और आंगनवाड़ी जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल के साथ अटैच है, प्राइमरी स्कूल के साथ भी अटैच है. और जो बच्चे लोग को शिक्षा जो दिया जा रहा है, वो चाहते हैं कि अभी का जो गवर्नमेंट और प्लस एजुकेशन पॉलिसी का जो सोच है, वो बचपन से ही
उनको और ज्यादा जागरूक किया जाए पढ़ाई के ऊपर में। ये चीज ज्यादातर स्ट्रेस दिया जा रहा है इसके ऊपर। ये नया जो एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, जिसके अभी 2021 के बाद से ही इनको लागू करने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। इसका बाद आंगनवाड़ी सेंटर बढ़ रहा है। फिर पेडागोजी जो है, जो मेथड है टीचिंग और वर्कर्स लोग का, जो भी है आंगनवाड़ी वर्कर्स लोग को जिस तरह का मेथड दिया जा रहा है, उनको और ज्यादातर सीखने को मौका दिया जा रहा है कि ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है। हर महीना में उनको 2 बार ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है। एज सोशल वर्कर भी दे रहे हैं, और जो एमिनेंस राइटर्स, एमिनेंस एजुकेशन का जिसके ऊपर नॉलेज है, उनको मौका दिया जा रहा है। और आंगनवाड़ी जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स एंड इंस्टीट्यूट में रहते हैं, उनको दिया जा रहा है। ये हो गया। इसका बाद और भी इसका फीचर्स हम लोग जानेंगे। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मल्टी फेस भी है, मल्टी लेवल भी चाहिए, प्ले बेस्ड भी एक्टिविटी होना चाहिए, आपका अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का इसमें। और क्या है, बच्चे लोग को कंप्राइजिंग अल्फाबेट के बारे में उनको और जागरूक कर रहा है। जो कार्ड सिस्टम से भी बच्चे को प्राइमरी जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको दिखा सकते हैं। कलर का भी है, जो कार्ड सिस्टम पहले भी चलती थी, अभी भी चलती है, मगर इनको और इनोवेटिव तरीका में आगे बढ़ाना है। लैंग्वेज का भी है। अभी लैंग्वेज के ऊपर ज्यादातर 3 फॉर्मूला लैंग्वेज तो है ही, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि हिंदी इंग्लिश तो है ही, और जो मातृभाषा वो रहती है। उसके बाद आपका नंबर्स का ऊपर भी बातचीत हो रहा है, नंबर को किस तरह से बच्चे को समझाया जाए। तो इस फाउंडेशन लर्निंग में, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर में एंड एजुकेशन में ये बातें बोला जा रहा है। और काउंटिंग भी, किस तरह का काउंटिंग होगा वो बच्चे को बचपन से ही सिखाया जा रहा है। कलर का भी, कलर कॉम्बिनेशन, पहले कलर के बारे में ज्यादा बच्चे लोग को नहीं बताया जाता था, 12 कलर ही उनको बताया जाता था। अभी क्या है, ओवरऑल उनको दिया जा रहा है 20 कलर्स तक भी दिया जा रहा है कि ये कलर है। तो उनको और जानकारी मिल रहा है कि कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या है। शेप, शेप क्या है, बचपन में ही बच्चे को मिट्टी से ही गुड़िया बनाना, डॉल का है, या एक टेबल बनाना, एक चेयर तैयार करना, या एक बॉल तैयार करना, उस तरह का मिट्टी का शेप से बनाने का भी दिया जा रहा है था। अभी न्यू मेथड में क्या है, कुछ केमिकल टाइप का चीज मिलती है, उसमें उसको मिला के, पाउडर को पानी में मिला के, उसको सख्त करके, उसके मॉडिफाइड करके, उनके बॉडी तैयार करके, कुछ इंसान का और एनिमल्स का भी, ये भी बच्चे को दे सकता है। और इंडोर और आउटडोर गेम्स का प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चे लोग को कि आप लोग खेलिए, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें क्या मेंटल फिजिकल जिनका बच्चे लोग का वो बहुत बढ़ता है, और उनको जो सांस लेने का प्रॉब्लम है, या उनको ज्यादातर घर में रहने का, वो चाहेंगे कि वो बच्चे लोग को भेजे इंडोर और आउटडोर। बाहर का भी खेल होना चाहिए, अंदर का, जैसे कि इंडोर में आपका ज्यादातर लूडो, चेस, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। मगर जब आउटडोर का होगा तब बच्चे लोग को फिजिकल वर्क करना है, जैसे दौड़ भाग करने से क्या है, उनको और शक्ति मिलती है, और उसमें जो स्टेमिना बढ़ते हैं बच्चे लोग का। फिर पजल का भी बच्चे लोग को बचपन से ही देना है। पजल दे देने से क्या है, पजल टाइप का जो क्वेश्चन टाइप रहेगा, या हम कुछ वर्ड को हम तोड़ दिए, उसको बच्चे को बोलेंगे कि आप जोड़िए। तो ये चीज देने से उनको और चीज सीखने को बचपन से ही उनको सीखने मिले। जब वो सीनियर क्लास में जाएंगे तो उनको और ज्यादा दिक्कत नहीं पेश होगा। फिर लॉजिकल थिंकिंग, उनको ऐसा हॉट क्वेश्चन भी दिया जाना चाहिए, जो हॉट क्वेश्चन से क्या है, कुछ टीचर्स को इनके बारे में जानकारी है, और भी टीचर्स को जानकारी लेना चाहिए कि हॉट क्वेश्चन किस तरह का होता है। उनको वो ज्यादातर उसका आंसर नहीं होता है, वो ज्यादातर बच्चे को समझाना है, बताना है, इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको बनाना है। फिर आ रहा है पेंटिंग। पेंटिंग भी बहुत बड़ा चीज है। अभी पेंटिंग कला का जगत है, इसमें पेंटिंग भी बच्चे को सिखाना है। ड्राइंग भी है, नेचुरल है, फिर मैन मेड का टाइप का भी है। सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होना है, जो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्वेश्चन देना है। अदर्स भी है, वर्चुअल और विजुअल आर्ट भी देना है। फिर पपेट शो का बारे में, या पपेट का बारे में भी जानकारी देना है।
जो कठपुतली का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। हमारा इंडिया में राजस्थान गुजरात में पपेट शो होता है, पपेट्स के बारे में भी बच्चे को स्कूल में ही शिक्षा मिल जाना चाहिए बचपन से ही। ड्रामा का भी जरूरी है, ड्रामा होने से हेलो हाँ, ड्रामा होने से भी बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे बचपन से ही ड्रामा का लुत्फ उठाएंगे तो वो बड़े होने के बाद भी वो अपने एक्टिंग का माध्यम से वो अपनी कला को स्टेज में सबके सामने उभार सकेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। म्यूजिक तो संगीत जरूरी है। संगीत पहले हमारा स्कूल एजुकेशन में बहुत कम मात्रा में थे, अभी संगीत को जोड़ा गया। संगीत बहुत जरूरी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और आपका वोकल सॉन्ग के साथ बहुत जरूरी है। मूवमेंट्स, अब हमने देखे हैं कि प्राइमरी में बच्चे लोग को जो कुछ टीचर्स है जो बहुत ही अच्छा से सिखाते हैं मूवमेंट करने। जैसे पंछी उड़ रही है तो वो अपने हाथों को हिला के दिखा सकते हैं कि बच्चे को कि ये पंछी कैसे उड़ती है। तो पंछी का जो मूवमेंट है वो चीज बच्चे को जब क्लियर पिक्चर दिखेगा तब भी वो बच्चे फटाफट उसको कैच कर सकेंगे कि ये बर्ड है, ये पंछी है, ये चीज है। और इट ऑल्सो इंक्लूड ए फॉर्म्स फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल कैपेसिटी। बचपन से वो अपने को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने जो सोसाइटी समाज के साथ वो किस तरह का व्यवहार और किस तरह का सोच आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी उनको उस समय बचपन से ही सिखाया जाए। वैसे हमारा जो सिलेबस है मोरल साइंस है, नैतिक ज्ञान तो है ही, मगर वो पर्सनली टीचर्स को हर समय जूनियर टीचर्स को बोलते हैं कि उनको देना पड़ेगा। उससे क्या है, उनको मोटिवेशन हर समय बढ़ जाए। सेंसिटिविटी होता है, गुड बिहेवियर के बारे में भी बच्चे को बचपन से ही सिखा देना है कि ये जो वर्ड्स है ये गुड्स है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब वर्ड करने से जो आगे वाला जो है, जो भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स, उनको जब भी रेस्पेक्ट देंगे तो बच्चे उस चीज को समझ में आएंगे कि ये रेस्पेक्ट वाला चीज है, ये हमको रेस्पेक्ट आने वाला दिन में मिलेगा या आने वाला साल में। फिर एथिक, एथिक मतलब हमारा जो समाज है ये, उसके बारे में भी अपना ओन लैंग्वेज को बच्चे को बता देना है कि ये आप कौन से राज्य में रहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला में रहते हैं या गांव में रहते हैं, जिसको हम लोग विलेज बोल रहे हैं। तो उस चीज को अच्छा से बच्चे को समझाना है और उनके बारे में बताना है कि यहाँ से कितने दूर में हमारा पोस्ट ऑफिस है, कितने दूर में पुलिस स्टेशन है। तो इस ये चीज देने से क्या और चीज जानकारी मिलता है। और है पब्लिक क्लीननेस, पब्लिक क्लीननेस के बारे में बताना है। हम लोग हर चीज जानते हैं कि हमारा घर बहुत साफ सुथरा रखना है, मगर बच्चे जब अपने स्कूल में आते हैं तो वो बोलते हैं ये दिस इज माय आवर या आवर स्कूल। तो जब आवर स्कूल बोलते हैं तो उनको बता देना है बच्चे को, टीचर्स का काम है कि ये आपका स्कूल है, आप उसको कितना अच्छा रख सकते हैं, कितना साफ सुथरा रख सकते हैं, तो उनको जानकारी देना है। फिर टीम वर्क का बारे में बताना है, बच्चे को बचपन से ही 4 ग्रुप बना देना है या एक ग्रुप में होना 4 बच्चे और एक ग्रुप में 4 बच्चे। तो बच्चे लोग को क्या मौका देना है कि आप लोग ग्रुपली कुछ तैयार करिए या ग्रुपली कुछ खेलिए, तो उसमें क्या यूनिटी बनेगा, उनका जो एकता बढ़ेगा, वो उस बच्चे को समझ सकेगा, उनका भाषा, उनका लड़ाई झगड़ा जो होता है, जो फाइट का जो चीज है वो नहीं होगा। वो ज्यादातर वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि वो बच्चे को वो बताएंगे और एक बच्चा अपना बात बताएंगे, ये चीज है। और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, टीचर्स का कोऑपरेशन स्टूडेंट्स का साथ तो होता ही है, मगर स्टूडेंट्स का साथ स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, उसमें अंडरस्टैंडिंग कराना है। और भी चीज जो इस बार जो 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि बाल वाटिका जो है एक स्कूल का मेथड है, इसमें क्या क्लास 1 से बताया जा रहा है कि क्वालिफाइड टीचर्स को ज्यादातर ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी में उनको नियोग करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, जिससे वो बच्चे को बचपन से ही उनको एक सही तालीम दे सके स्टेप बाय स्टेप। इसका बाद आ रहा है आपका प्ले बेस्ड लर्निंग। प्ले बेस्ड अभी हमारा जैसे कि पार्क है, स्कूल में पार्क टाइप का रहती है, और जो एक रूम होता है उसमें क्या है, बच्चे को उस बोर्ड में
पिक्चर दिया गया है, बॉल का है, फुटबॉल की कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे का तस्वीर रहेंगे तो उसमें बच्चे फटाफट उसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे दैट इज द क्रिकेट मैच, और ही इज प्लेइंग और शी इज प्लेइंग विथ इसका खो खो या कबड्डी, ये चीज का है। नेक्स्ट आ रहा है आपका पास्ट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। ये हम लोग सब बात करना जरूरी है, पास्ट हिस्ट्री में जानना है। हमारा जो इतिहास है हमारा पढ़ाई का, लॉर्ड मैकाउली जब ब्रिटिशर जब भारत में आए थे तो उन्होंने इंग्लिश पॉलिसी का ऊपर उन्होंने किताब भी लिखे थे और पॉलिसी को आगे बढ़ाया था। मगर उनके बाद जाने के बाद हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हम लोग 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी को चालू किया। उसका उस समय में इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आया आपका 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आपका जो राजीव गांधी को उन समय वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन समय उनके समय में ये एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया। उसके बाद 34 इयर्स कोई नया एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया नहीं, बनाया तो था मगर उनको लागू नहीं किया गया, या उनका ओनली 5% इंक्लूड किया गया अर्लियर जो प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी में। अभी जो पॉलिसी बना है 2020 में एजुकेशन पॉलिसी, ये नरेंद्र मोदी के शासन में हुआ है, तो ऐसा उनका भी मानना है और हमारा जो एजुकेटेड पर्सनालिटी है उनका सोच है कि एजुकेशन में हर 5 साल और 10 साल के अंदर में एजुकेशन पॉलिसी चेंज होना चाहिए एंड अप टू डेट होना चाहिए, तो ये जरूरी है। और हम लोग को एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इंसान का योगदान है, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। उनको बच्चे को जानकारी देना है, ये भी चीज बताना जरूरी है, टीचर्स के काम है। अभी जैसे कि पढ़ाई का बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो मिनिस्टर्स का बारे में, नेता का बारे में बताना है कि ये नेता उस समय में मिनिस्टर थे तो किस तरह का एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था और किस तरह का एजुकेशन पॉलिसी का ऊपर में बातचीत हुआ था, तो ये बहुत जरूरी है। और इस समय में हमारा इंडिया में बहुत टीचर्स का भी योगदान है। उस समय में जो योगदान हुआ है उस चीज के बारे में हम लोग, सावित्री बाई जो आपका महाराष्ट्र में, उनको हम लोग फर्स्ट वुमेन टीचर्स का उनको एक दर्जा दिया है भारत सरकार ने। और मैन में अभी तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं आपका मेल कैटेगरी में, फीमेल में हम लोग ने आपका सावित्री बाई को दिया गया है, क्योंकि वो उन समय में उन्होंने बचपन से पढ़ाई का ऊपर रुचि थी और वो स्कूल एक खुले पुणे में तो मराठी लैंग्वेज में, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रोत्साहन दिया कि इसके बारे में आगे बढ़े। तो चेयरमैन जो बने थे, वो चेयरमैन जो पहला जो चेयरमैन थे, वो जो कमीशन बनने में तो आचार्य रामामूर्ति भी बने, वो चेयरमैन बन के जो एक फ्रेमवर्क दिए थे एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। फिर कोठारी सर आए, डॉक्टर कोठारी, उनको भी योगदान है एजुकेशन पॉलिसी में। ये लोग सब जो है, ये लोग एजुकेशनिस्ट है जो एजुकेशन का ऊपर में A to Z उन्होंने का जानकारी है, उनका थ्रूली हमारा एजुकेशन पॉलिसी बहुत फुलफिल कर सके। अब आ रहा है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इन ऑल स्टेट एक्सपेरिमेंटिंग लर्निंग, हमारा अभी का जो एज है, मॉडर्न एज में हम लोग को हर समय में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करना है। आर्ट एंड क्राफ्ट का ऊपर, स्टोरी टेलिंग का ऊपर जो है, ये हम लोग को जो गैप है, एक्सपेरिमेंट जरूरी है, जो एक्सपेरिमेंटल करना जरूरी है। एजुकेशन के ऊपर में जो भी टूल्स मिलती है उसके ऊपर में बहुत जरूरी है कि टीचर्स को उसके साथ लेके बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट का मेथडली, एक्सपेरिमेंटल मेथडली उनको बच्चे को जागरूक देना। कैपेसिटी है जिस बच्चे का, जो उनको जानकारी है उनको मौका देना है। जो बच्चे नहीं चाहता है, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको जगाना है।
तो वो 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी इसका बात चर्चा किया गया है और सब्जेक्ट का ऊपर भी बातें किया गया है कि जो अभी जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादातर ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा टॉपिक नहीं दे सकते, उसमें थोड़ा कम देने से क्या बच्चे को मौका मिलता है कि उस लेवल में वो तैयारी कर सके। इसका बाद आ रहा है आपका थर्ड में आ रहा है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी ये अर्लियर गवर्नमेंट और अर्लियर एजुकेशनल पॉलिसी में इसको कंटिन्यू रखा था, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी फॉर्मूला इसको भी कंटिन्यू रख रहे हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये बहुत लोग को जानकारी है, बोलने का नहीं है, मगर इसमें हम थोड़ा बता देते हैं। इंग्लिश, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज ये रहती है। तो अभी जो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी ये 22 लैंग्वेज में प्रिंट किया गया है, जिससे हमारा देश में जितना भी भाषा में इसको जो भी स्टेट्स है वो पढ़ के समझ सके। पहले एजुकेशन पॉलिसी ज्यादातर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दिया जाता था, रीजनल में नहीं होता था। तो अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 22 लैंग्वेज में इनको मौका दिया गया है कि ये जो भी लैंग्वेज टीचर है उसको पढ़ के समझ सके और इनिशियली उसको क्वेरी कर सके, उनका इम्प्लीमेंट कर सके इन फ्यूचर्स एजुकेशन। और एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री विल पार्टिसिपेट in fund project also activity on the language and of India। तो language of India का बारे में जानना है। As a Indians, everybody should learn the Indian language। इसमें ग्रेड 6 से लेके अप टू ग्रेड 8 तक, मतलब क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेके क्लास 8 तक, इसमें एक भारत एक शिक्षा का बातें बोला गया है, मतलब 1 इंडिया 1 एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमारा पहला स्ट्रेस ज्यादातर उनके ऊपर बातचीत हो रहा है, वो है रीजनल लैंग्वेज। पहले अपना मदर टंग को बच्चे को मौका देना है सीखने को और उनको समझाना है कि मदर टंग लैंग्वेज को जानना है। इसका बाद जो सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी या थर्ड लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, इसके बारे में भी बताना है। और इम्पोर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज को भी समझना है, उसके बारे में भी पढ़ाई होना चाहिए। जैसे संस्कृत अभी हमारा स्कूल्स लेवल में क्लास 6 to 8 तक ही है, तो अभी इनको बचपन से ही इनको भी मौका मिलना चाहिए कि संस्कृत, तमिल, दिस आर तमिल लैंग्वेज ऑल्सो क्लासिकल, तेलुगु, कन्नड़ जो लैंग्वेज है, एंड दैट अदर लैंग्वेज, प्रतीक, पाली, दिस लैंग्वेज आर एक्सटिंक्ट, ये लैंग्वेज लुप्त हो चुकी है। मगर इस लैंग्वेज को हम लोग कल्चर करना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जिससे अभी पाली लैंग्वेज क्या है, पाली लैंग्वेज गौतम बुद्ध ने उनके समय में ये लैंग्वेज को लागू किया था। तो हमारा इंडिया में ओनली बिहार में नालंदा जो जिला है यहाँ पाली लैंग्वेज को सिखाया जाता है। तो ये खाली इकलौता बिहार में सिखाया जाता है, और चाइना, जापान जो लोग ज्यादातर बुद्धिस्ट कंट्री है, वो श्रीलंका, ये लोग इसको फॉलो करते हैं। मगर हमारा इंडिया में इस लैंग्वेज को हम लोग को और राज्य में भी देना है, जिससे वो सीख सके, समझ सके कि उस समय के जो ज्ञानी व्यक्ति थे, विद्वानी जो स्कॉलर्स थे, उनके बारे में वो क्या लिखे थे अपने भाषा में, उसको अभी आप लोग उसको हम लोग एज ए टीचर उनको ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश में हम लोग पढ़ सके। पर पाली लैंग्वेज क्या है, प्रतीक लैंग्वेज क्या है, ख्रिस्ती लैंग्वेज क्या है, ये सब लैंग्वेज जो थी ये सब लुप्त हो चुकी है। मगर इसको कहीं हम लोग को मिला है, वो कहाँ है, म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा गया है। उसको हम लोग को कल्चर करना है, उसको समझाना है। हमारा जो न्यू जनरेशन है उनको ये बताना है, दिस आर द लैंग्वेज at the 1000 10,000 years ago this was taught by the great scholars। तो स्कॉलर्स तो सिखाते हैं, अभी उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको देना है। और ब्यूटी ऑफ क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो ब्यूटी जानना है। क्लासिकल लैंग्वेज में बहुत गहराई है,
जो संस्कृत में इतना वर्ड्स है, उस वर्ड्स को समझना जानना बहुत मुश्किल है, मगर इसको जब टीचर्स जानेंगे तो कभी कभी वो बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं। ऐसे में आज मेरा अनुभव से हम बोलते हैं, कभी कभी मैं बच्चे को जब मैं कोई हिंदी में या इंग्लिश में कोई स्टोरी समझाता हूँ, स्टोरी टेलिंग होता है या कोई लीडर्स के बारे में बताते हैं, तो जैसे कि रामायण भागवत का, तो हम संस्कृत में भी कभी कभी उस वर्ड को यूज कर लेना चाहिए, बोल देते हैं। पानी ना बोल के जल बोल सकते हैं, सीता को ना बोल के सीते बोल सकते हैं। तो ये वर्ड देने से क्या बच्चे पूछेगा क्या है, ये कौन सा लैंग्वेज है, तो उस समय में बोल से संस्कृत है। तो संस्कृत कभी कभी बच्चे को बताना जरूरी है, संस्कृत को लेना है। बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है, एट 3 इयर्स का लेवल में उनको जानकारी मिलता है, वो उसके बाद छोड़ देते हैं। अब हायर एजुकेशन में, कॉलेज लाइफ में उनको मौका मिलता है जब चॉइस लेके वो सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज में आप मलयालम भी है, तो ये जो लैंग्वेज है ज्यादातर साउथ इंडियन, दिस आर द क्लासिकल लैंग्वेज, इनका ब्यूटी बहुत ही बढ़िया है और डीप नॉलेज है। देन आ रहा है आपका नॉलेज ऑफ इंडिया। द नॉलेज ऑफ इंडिया का बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ इंडिया। पहले हम अपना देश का, हमारा देश का जो कल्चर है उस चीज को हम लोग जानेंगे। जो हमारा कल्चर है, हमारा समाज में जो चीज, हम लोग विदेशी कल्चर बहुत सीख रहे हैं, हमारा सिलेबस में बहुत है। इंग्लैंड का स्टोरी इंग्लिश का बुक में मिलेंगे आपका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी कुछ स्टोरी है। एज ए इंग्लिश बुक पढ़ने से आपका अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में, मगर हमारा इंडियन लैंग्वेज में, हमारा हिंदी में और जो अदर स्टेट्स में जो डीप नॉलेज है उसके बारे में। तो इसमें क्या है बताया गया, नॉलेज विच इंक्लूड द नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। प्राचीन युग से हमारा इंडिया का जो इतिहास है बहुत छुपा हुआ है, उसको बाहर निकाल के बच्चे को आगे में पेश करना है, जिससे बच्चे समझ सके। और कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया तक हम लोग कैसे पहुंचे, एंशिएंट से मेडिवल से लेके मॉडर्न तक कैसे पहुंचे, उस चीज को पूरा क्लियर कट उनको बताना है। इसका बाद सक्सेस एंड चैलेंज, सक्सेसफुली चैलेंज देना है। इसमें क्लियर सेंस में फ्यूचर्स इंडियन एस्पिरेशन होना चाहिए, मतलब इंडियन सोच में उनको देना है ज्ञान। हेल्थ का बारे में भी और एनवायरमेंट का बारे में। तो हमारा गुरुकुल का एज ए एग्जाम्पल में ले रहे हैं, तो गुरुकुल में जो सिलेबस था उसमें तीर धनुष का था सिलेबस में जो, और सब्जेक्ट ज्यादातर है स्विमिंग्स, कलेक्शंस फ्रॉम द वुड्स, फ्रॉम द आपका फॉरेस्ट से, तो ये सब सिलेबस थे। और जो कुकिंग का भी था और साफ सुथरा रखने का, तो जो नीट एंड क्लीननेस का भी बारे में बताया गया। और नॉलेज ऑफ इंडिया में इट कवर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। मैथमेटिकल ऑर्डर जो है, मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारा एंशिएंट इंडिया में, जैसे कि हम लोग जंतर मंतर को ले लेंगे, उसमें जो टाइम को दिखाया जाता है, तो वो उस समय के राजा जय सिंह ने उन जो कंस्ट्रक्शन किए थे, तो वो एक चीज है बच्चे को बताना है कि एंशिएंट टाइम में हमारा क्लॉक का डिस्कवरी हो चुका था। फिर हमारा जो मॉन्यूमेंट्स है, इंडिया में मॉन्यूमेंट्स बहुत है, मॉन्यूमेंट जो पुराना बिल्डिंग्स है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को भी बच्चे को बताना है कि ये उस चीज में आती है। इसका बाद आ रहा है एस्ट्रोनॉमी आती है, नॉलेज ऑफ इंडिया, फिलोसफी, योगा का बारे में भी अभी जो पॉलिसी बना है एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें स्ट्रेस दिया गया है। उसमें फिट इंडिया मूवमेंट का बारे में बताया गया है कि फिट कैसे रखे एज ए योगा का थ्रू। फिर आर्किटेक्चर, मेडिसिन, आयुर्वेद का बारे में, आयुर्वेद वो एजुकेशन में दिया गया है, आयुर्वेद का बारे में बताया गया है कि आयुर्वेद को समझना है। हमारा जो प्राचीन मेडिसिन का बारे में पढ़ाई होती थी, वो अभी हम लोग ज्यादातर मॉडर्न मेडिसिन का ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग एंशिएंट मेडिसिन हमारा इंडिया का है, उस चीज को आगे बढ़ाना है, तो वो भी इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया। लिंग्विस्टिक का ऊपर, फिर स्पोर्ट्स का ऊपर, खेल। अब इंडिजिनियस गेम का ऊपर भी बातें किया गया, जैसे कि मलखंड।
कबड्डी, खो खो, इसके बारे में बच्चे को बताना है। इसमें रुचि बहुत कम है बच्चे लोग, तो बच्चे लोग को बता के रुचि तैयार करना है, इंटरेस्ट जगाना है कि दिस आर द इंडिजिनियस गेम ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया में भी एक लोकल एक ओलंपिक गेम होती है, हर 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ऐसा बनाया गया। कभी 5 साल हो जाता है क्योंकि ड्यू टू द पेंडेमिक मूवमेंट की वजह से। तो ये चीज की वजह से, तो ये जो हमारा लोकल ओलंपिक गेम्स होती है पंजाब में ज्यादातर होती है। तो इसमें क्या लोकल गेम्स में जो है बच्चे लोग को और जो स्टेट्स को बोला जाता है कि आके भाग लीजिए। फिर आ रहा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बारे में भी स्ट्रेस किया है, बताया गया है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग और कल्टीवेशन का बारे में बताया गया है। नेचुरल फार्मिंग का बारे में, नेचुरल फार्मिंग हम लोग बहुत जरूरी है। एज ए केमिकल हम लोग बहुत फर्टिलाइजर यूज करते हैं फार्मिंग में, खेत में। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि नेचुरल वे से, एज ए टेप वार्म या अर्थ वार्म हम लोग उसको बोल सकते हैं। अर्थ वार्म को एज ए फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स ऐसा बोला जाता है, तो हम लोग उनको समझना है। और वीडियो डॉक्यूमेंट्री इंस्पिरेशन के लिए बच्चे को बताना है, एज ए एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया में क्या क्या हुआ है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ ही एज ए डिजिटल वर्ल्ड, अभी हमारा इंडिया डिजिटल वर्ल्ड के साथ एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज है। स्टूडेंट विल बी एनकरेज टू विजिट डिफरेंट स्टेट्स। इसमें टीचर्स का योगदान बहुत जरूरी है। बच्चे को बताना है जब भी आपको टाइम छुट्टी मिलता है, गर्मी का छुट्टी या ठंडी का छुट्टी, you have to visit in a different states, different place for learning different architecture, different place के बारे में समझिए, वहाँ का लोकेशन, लैंग्वेज, इसके बारे में भी। एंड कल्चरल एक्सचेंज, any student or any teacher will visit any regional place or state